Central dogma of DNA. What is the central dogma? Central dogma means all the function of the cell controlled itself by the DNA. How it is? Means DNA replicate its copy and DNA form its copy, that is known as replication. Replication means DNA to DNA is formed, and DNA also formed, that is messenger RNA, that having information. That process is known as transcription. Means DNA form messenger RNA. That process is known as transcription. Means the message which is present on the DNA that transcribe on the messenger RNA, and messenger RNA protein formed protein. That process is known as translation. Means the message which is present on the messenger RNA that translate in the form of protein, and this process is known as central dogma. Central dogma, all the functions control itself by the DNA. यहाँ कौन सा प्रोटीन बनेगा वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ डीएनए के थ्रू हो चुकी है. दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेंट्रल डोग्मा. Then now the packing of DNA helix. Packing of DNA helix. How the DNA is present inside the chromosome. How their packing is occur, that is known as packing of DNA. We can say that is structure of nucleosome. Structure of nucleosome or new body. It is also known as new body. We know that is between two base pair, that is 3.4 angstrom or 3.4 into 10 to the power minus 9 base 9 meter distance is there between two base pair, that is 0.34 into 10 to the power minus 9 meter or 0.34 angstrom distance present between the two nitrogen base pair. We can calculate the total strength, total length of the DNA or total length of the DNA which is present in the human genome by the multiplying of the total base pair. यानी हम पता कर सकते हैं कि क्रोमोसोम की या डीएनए की कितनी लेंथ होती है, अगर हमें पता हो कि डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं. तो नॉर्मली इन्हें डीएनए में बेस पेयर होते हैं, दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9. इतने बेस पेयर होते हैं पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस के अंदर. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू 2.2 मीटर. इस सबकी लेंथ कितनी आती है? 2.2 मीटर. And we know what is the size of nucleus. What is the size of nucleus? Human nucleus कितनी छोटी होती है, और इसकी कंपेरेटिवली इतना बड़ा डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे आता है? दैट इज द पैकिंग. इसी तरह से अगर अपन ई कोलाई की लेंथ देखें डीएनए की, दैट इज 1.36 mm. ई कोलाई कि जो डीएनए की लेंथ होती है वो 1.36, जबकि वो तो बहुत स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नेकेड आई से न तो इसकी ह्यूमन बीइंग की न्यूक्लियस को ही नहीं दे सकते हैं. तो हाउ it is adjust inside the very small nucleus. Now we see how it is associated, how it is arranged, their structure, which we can say which is structure of nucleosome or structure of new body, and that is the packing of helix. If we see the chromosome which has two arms, that is chromatids, sister chromatids. If we see the small portion of one chromatid, this is the chromatid. Small structure, this is like in the loops. यहाँ पर ये छोटे छोटे लूप होते हैं. इन लूप्स को क्या कहते हैं? क्रोमोमियर्स. और इस सिंगल क्रोमोमियर्स को अगर अपन देखें
under the electron microscope it is like beads like appearance नजर आती है, and this small structure is known as nucleosome, and between two nucleosome that DNA is there which is known as DNA linker. ये बेडेड अपीयरेंस जो आ रही यहाँ पर इतने से स्मॉलर स्ट्रक्चर को देखें तो ये है. अब हाउ न्यूक्लियोसोम इज अरेंज. न्यूक्लियोसोम इट हैज द डीएनए एंड protein that is made up of 8 histone protein, 8 molecule of histone protein. इसके अंदर कितने 8 मॉलिक्यूल होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर स्पेशली आर्जिनिन एंड लाइसिन दैट इज द बेसिक हिस्टोन प्रोटीन होते हैं. उनकी साइड चेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डीएनए वार्प डाल रहता है. कैसे? सपोज दिस इज द हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन ऑक्टामर. इट इज मेड अप फ्रॉम 8 molecules. These are the suppose this one is of H2A, this is of again H2A, this is of H2B, this is of again H2B, that is 4 molecules. This is of H3 here, and this is of H3, this is of H4, and this is of H4. That is 2 molecules of H2A, 2 molecules of H2B, 2 molecule of H3, and 2 molecule of H4. That is 8 histone proteins are arranged in a histone octamer on which DNA will be rubbed. इसके ऊपर DNA रब्ड रहता है इस तरह से ये, और ये जो डीएनए है इस डीएनए की लेंथ होती है दैट इज 200 बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर, जिसके ऊपर 200 नाइट्रोजन बेस पेयर रहते हैं. ये यहाँ पर एक सर्किल हुआ, एक दूसरा ये, फिर यहाँ नीचे एक दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर होगा, उसके चारों तरफ भी रैप्ड रहेगा, और ये बीच वाला जो डीएनए है ये क्या कहलाता है? डीएनए लिंकर. एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली लेंथ इज ऑफ 18 बेस पेयर, सॉरी 80 बेस पेयर. तो न्यू बॉडी के अंदर हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं, और हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर स्पेशली इसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन हिस्टोन बेसिक हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिनकी साइड चेन के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डीएनए लिपटा हुआ होता है, और उस डीएनए में की जो लेंथ होती है 200 बेस पेयर. और तीसरा ये नेक्स्ट पोर्शन जो है डीएनए लिंकर, और इसके बीच में क्या होता है? एक H1 हिस्टोन प्रोटीन भी होता है. मैं डायग्राम वापस से बताता हूं, इसका डायग्राम कैसे हो सकता है. सपोज दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर एंड दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए, ओके, एंड ये here H1 histone protein is there, and inside this that is 8 histone protein is there. This is the H1. So 5 molecules of histone protein is there. Out of 5 molecules, H2A, H2B, H3 and H4 they has 2 molecules. So 8 are these, and 9th one is of H1 histone proteins. और दिस इज दैट इज डीएनए लिंकर, जो कि फिर दूसरे पे लिपटा रहता है. तो ये क्या है? ये न्यू बॉडी है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू बॉडी, एंड इन दिस वे दैट पैकिंग ऑफ डीएनए इज देयर, एंड ड्यू टू विच very long DNA, that is 2.2 meter DNA, is arranged in the very small size of nucleus. So this is the structure of new body or nucleosome. Search of genetic material. Different scientists find out the
DNA is genetic material. Mendel also studied the factors which is responsible for the characters, but he cannot identify the DNA. After that, T.H. Morgan, Sutton Boveri, and other scientists work on the chromosomes and other things, but they cannot find out and establish the DNA is a genetic material. For this, first of all, that F. Griffith explain his experiment, that is the transforming experiment. Transforming principle. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल सबसे पहले किसने दिया था? एफ ग्रिफिथ। एफ ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने वर्क किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। Streptococcus pneumoniae, that is pneumonia causing agent, bacteria. He studied on this bacteria and find out the transforming principle. उन्होंने देखा कि इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन होती है, वन इज ऑफ एस स्ट्रेन दैट इज ऑफ विरुलेंट एंड अनदर इज ऑफ आर स्ट्रेन दैट इज नॉन विरुलेंट। ये सेंसिटिव स्ट्रेन है, दूसरी रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, दैट इज वन ऑफ स्मूथ स्ट्रेन, अनदर वन इज ऑफ रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन इसके चारों तरफ कुछ कवरिंग बन जाती है, इसलिए वो स्मूथ हो जाता है, और इसके चारों तरफ कवरिंग नहीं बनती तो वो स्मूथ नहीं होता। उन्होंने क्या किया, इन दोनों स्ट्रेन को लिया। सबसे पहले लिया एस स्ट्रेन को एंड इंजेक्टेड इनटू माइस। इंजेक्टेड इनटू माइस टाइप। Another taken R strain, inject into mice life। उन्होंने देखा कि एस स्ट्रेन जो कि कह सकते हैं सेंसिटिव स्ट्रेन है या स्मूथ स्ट्रेन है, जो कि विरुलेंट होती है और अपना असर दिखाती है, तो जैसे माइस के अंदर जाएगी माइस की डेथ हो जाती है, परंतु ये नॉन विरुलेंट है, उसकी वजह से माइस की डेथ नहीं होती है। अलग एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एस स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड। एस स्ट्रेन लिया और उसको हीट करके किल्ड कर दिया, देन इंजेक्ट इनटू माइस लाइफ, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको मार दिया गर्म करके, तब चूहा नहीं मरता है। एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन, inject into mice died। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उनका जो कंक्लूजन था, उन्होंने कहा कि जब सेंसिटिव स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट करते हैं तो माइस की डेथ हो जाती है, बिकॉज इट इज विरुलेंट, एंड व्हेन R strain injected into mice will be live because it is non virulent। इसकी इफेक्ट नहीं होता है, नॉन विरुलेंट होता है, एग्रेसिव नहीं होता। परंतु एस स्ट्रेन को हिट किल्ड कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी डेथ होगी तो उसका असर नहीं होगा। परंतु एस स्ट्रेन हिट किल्ड लिया और आर स्ट्रेन ये लिया, फिर उस दोनों को एक साथ इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो जाती। हियर दैट आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। यहाँ पे क्या होता है, जो आर स्ट्रेन है या रफ स्ट्रेन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस स्ट्रेन होता है बाय पिकिंग अप ऑफ जीन
ऑफ एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन के जीन को पिकअप कर लेता है एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। यहाँ जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन के जीन को पिकअप करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर स्ट्रेन, यानी नॉन वीरुलेंट स्टेज के जीन्स को ले लेता है और अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, अपने आप को ट्रांसफर कर लेता है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड दैट आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन एंड दैट mice will be died, and this principle is known as transforming principle, in which non-virulent strain converted into virulent strain by the picking up of gene from the S strain, heat killed. But this principle also not find out the chemical nature of genetic material, and we cannot say that DNA is of genetic material, but we explain the transforming principle from this experiment. इससे केवल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या डीएनए की केमिकल नेचर को ये प्रूव नहीं कर सकता है। व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ऐसे कौन सा सब्सटेंस था जिसकी वजह से एक जो नॉन विरुलेंट था वो विरुलेंट में कन्वर्ट हो गया? तो उसकी नेचर को फाइंड आउट करने के लिए 3 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे। ओ एवेरी, सी मैक्लियोड एंड एम मैककार्टी। These 3 scientists, ओ एवेरी, सी मैक्लियोड और एम मैककार्टी, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किए थे और जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का को फाइंड आउट किया था, उसकी केमिकल नेचर को फाइंड आउट किया था। इन्होंने आइसोलेट किए क्या फ्रॉम दैट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, दैट इज प्रोटीन, अनदर वन इज ऑफ आरएनए एंड थर्ड वन इज ऑफ डीएनए। इन तीनों को आइसोलेट किया फ्रॉम द एस स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। प्रोटीन को इन्होंने आइसोलेट किया और प्रोटीन को डाइजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ प्रोटीनेज एंजाइम। प्रोटीनेज एंजाइम से क्या, तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, बट आरएनए और डीएनए उसके अंदर इंसर्ट हुए, तो इट नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया प्रोटीनेज एंजाइम से, फिर बचा क्या, डीएनए और आरएनए बचा, तो वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को अफेक्ट नहीं करता। इसी तरह से अलग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किसको, आरएनए को डाइजेस्ट किया आरएनएज एंजाइम से डाइजेस्ट किया, तो भी देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अफेक्ट नहीं होता है। अभी भी दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन मीन्स जो आर स्ट्रेन है वो हीट किल्ड डीएनए से एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही थी। एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया था डीएनएज एंजाइम से डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया और फिर इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को देखा गया, नाउ इट इज अफेक्टेड, देन एस स्ट्रेन इज नॉट, आर स्ट्रेन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। यानी डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, यानी क्या कह सकते हैं, उन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए ही रेस्पॉन्सिबल होता है जिससे क्या, जो एस स्ट्रेन है, सॉरी आर स्ट्रेन है, वो किस में कन्वर्ट होगी, एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट होगी और वही जेनेटिक मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसफर करता है। परंतु दे कैन नॉट प्रूव टिल डेट द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अभी भी ये साइंटिस्ट को, वर्ल्ड के बाकी साइंटिस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है और यही इसको अफेक्ट करता है। बिकॉज उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग से प्रोटीनेज से, आरएनए डाइजेस्टिंग से एंजाइम से आरएनए से, और डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम से डीएनए से। तो इन दोनों से तो अफेक्ट नहीं हुआ, परंतु इससे अफेक्ट हो गया, यानी डीएनए को डाइजेस्ट हो गया, तब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा। बट दे नॉट सेटिस्फाई द वर्ड साइंटिस्ट, द डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल।